morning everyone. Today we will start rearrangement of carbocation. Let's see what is the rearrangement. Basically you know what is the rearrangement. Rearrangement means if we have some box which are arranged like in this manner and mark it 1, 2, 3, 4 and 5. Now if I need to rearrange, I want third one to at the first position and first one at third position. What we can do, we put the third one here, second one will be here will be the first, and this is the fourth, and this is the five. So we can understand what is rearrangement. Taking from one position and putting it at another position means replacing, interchange of position. That is rearrangement. Is it okay? What is rearrangement? When we take the atom or take a charge and anything from one position to another position, that is rearrangement. Okay. Now, to check here what we are talking. We are talking about the rearrangement of carbocation. Means carbocation will rearrange. Means carbocation will go from one position to another position. That is rearrangement. Okay. Now see, you can see. So in this is important. Why rearrangement occur? Okay. So see why it will occur. You can see here at this carbon, carbocation is in this molecules, carbocation is available at this carbon. Okay. Now it appear on this carbon. Here it appear on this carbon. So position of carbocation is changing. Means carbocation change its position from second carbon to third carbon. Is it okay if we mark like this is the 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Then carbocation change its position from second carbon to third carbon. Is it okay? That is, carbocation is change their position from second carbon to third carbon. Okay. Now say, basically, why do it rearrange? It is important. Why do it rearrange? So see, in these molecules, number of hyperconjugation for this carbocation. Count the number of hyperconjugation. We have 3 here and we have 1 hydrogen available here. So number of hyperconjugation is 4, and in this molecule number of hyperconjugation is 8. Is it okay? Number of hyperconjugation in this molecules is 4 and number of hyperconjugation in this molecules is 8. So stability of molecule. See. Okay, so see here there are 4 hyperconjugation. Here we have 8 hyperconjugation. Means stability of this molecule is more than this molecule. Is it okay? Since stability is increasing, so we can say it can rearrange. So what is the factor which affect the rearrangement? It's the stability of molecules. अगर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रीअरेंज कर सकता है. अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है. क्लियर है? तो ये बात समझा व्हाट इज रीअरेंजमेंट. इसका मतलब समझा. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर जाना, दूसरे प्लेस पे अवेलेबल हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट. और रीअरेंजमेंट होता क्यों है, तो रीअरेंजमेंट होने का फैक्टर क्या है, तो रीअरेंजमेंट तब होगी जब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. क्लियर है? ये चीज समझा. चलो, तो 2 लाइन लिख रखा है, कार्बोकेटाइन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज. तो फ्री रेडिकल है हमारे पास, कार्बोनाइन है, कार्बीन है, नाइट्रिन है, ये सारे रीअरेंज नहीं कर पाते हैं. रीअरेंज कौन करता है, सिर्फ कार्बोकेटाइन ही रीअरेंज कर पाता है. क्लियर है? ये बात समझा. रीअरेंजमेंट कौन कर सकता है, ओनली कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज. और रीअरेंजमेंट कब होगी, रीअरेंजमेंट कब होगी, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. जैसे हम अपन एक केस देख सकते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स है, आप इसमें थोड़ा सा चेंज करो. अब देखो, अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट कराऊं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएगा H CH3 CH3 CH प्लस CH2 एंड CH3. क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या?
तो हम चेक करके देखिए, स्टेबिलिटी चेक करना है तो हमारे पास रेजोनेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना पड़ेगा। तो चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 and 2, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे चेक करो 1 and 2 कितने आ गए, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या ये रीअरेंज करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो रीअरेंजमेंट कब होगा, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है, नोट करें इसको। नाउ देखो, तो rearrangement of carbocation, basically rearrangement of carbocation occur in 5 ways. First is the hydride shifting, second is the alkyl shift, and third is the phenyl and ring expansion and ring contraction. तो बेसिकली ये 5 तरीके हैं जिससे कि हमारा कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्लियर है। तो देखो पहले हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट में बात करें तो यहाँ देखो इस वाले के, बेसिकली चलो मैं इधर लिख देता हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब एच का शिफ्ट करना, एच माइनस को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे रख देना, और उसके थ्रू जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा दैट इज कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट। उसी तरह अल्काइल शिफ्ट का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप का एक जगह से दूसरे जगह जाना। फिनाइल शिफ्ट का मतलब पीएच, फिनाइल ग्रुप का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। उसी तरह रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, रिंग का एक्सपेंड करना मतलब 5 से 6 में कन्वर्ट करना, 4 से 5 में कन्वर्ट करना, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे 6 से 5 में आ जाना, 7 से 6 में आ जाना, 8 से 7 में आ जाना, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो आ जाते हैं सबसे पहला हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, देखो इस वाले को, ठीक है, ये वाला चेक करें हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, आ जाओ। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हुआ, जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, ये माइक कभी कभी काम करना बंद कर देता है, सो डोंट वरी, कम टू द पॉइंट। हाइड्राइड शिफ्ट, ओके, तो हाइड्राइड शिफ्ट में क्या बताया, तो हाइड्राइड दिस इज, जैसे कार्बोकेटाइन इज अवेलेबल एट दिस कार्बन, तो हमने क्या किया, कार्बोकेटाइन को सेकेंड डिग्री कार्बन पे, दिस इज 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, तो हमने कार्बोकेटाइन को क्या किया, 2 डिग्री कार्बन पे लेकर के आया। तो 2 डिग्री कार्बन के पास देखो कितने एच थे, 2 एच थे, और यहाँ अभी कितने हो गए, 1 एच हो गए। मतलब क्या हो गया, एक एच इधर से निकल को कहाँ आ गया, फर्स्ट वाले कार्बन पे आ गया। क्लियर है। तो कौन शिफ्ट किया यहाँ पे, H माइनस का शिफ्ट हुआ है, इसको क्या बोला हमने, हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर है। अब देखते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट होता कैसे, हम लोग ये चेक करें। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है, हमें आता है, हमें पता है कि ये जो सिग्मा, ये जो कार्बोकेटाइन है, इट कैन पोलराइज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड, कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना चालू करेगा। क्लियर है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, आपको याद हो हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इन तीनों के बीच डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब इन तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब देखो, अगर ये कार्बोकेटाइन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स अप्लाई करने की या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा कब होगी, जब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा तो ज्यादा फोर्सफुली इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेगा तो पहले सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच शेयर हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग है मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा अनस्टेबल है। तो अगर ये ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ साथ ये पूरे मॉलिक्यूल को ही अपने तरफ, पूरे एटम को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है। जैसे ही अट्रैक्ट करना चालू करेगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हाइड्राइड, पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्लियर है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन तीनों के बीच में, आप देख सकते हो। ऐसे तुम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन में ये पढ़ाया है, CH, और यहाँ पे H है, CH2। ओके। तो क्या हो गया, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्लियर है।
बट अगर ये कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करता है, ये तो अट्रैक्ट किया, उसको फर्दर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता रहता है और ये कंप्लीटली ये पूरे H मॉलिक्यूल्स को ही, पूरे H एटम को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है? तो जैसे पहला स्टेप क्या हो गया, इसने इस सिग्मा क्लाउड को अट्रैक्ट किया अपने तरफ, सिग्मा क्लाउड को अट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसी के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मैकेनिज्म था उसी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस चल रहा है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बीच में डिस्पर्स हुआ। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, फिर ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा तो ये धीरे धीरे अभी अट्रैक्ट करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज की डेंसिटी जनरेट होने लगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंटिन्यूसली अपने तरफ विदड्रॉ कर रहा है। क्लियर है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विदड्रॉ तो किया ही, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको भी विदड्रॉ करने लगा वो। ये क्लियर है? तो जैसे ये विदड्रॉ करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज की डेंसिटी आएगी। अगर ये प्लस चार्ज जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, अगर ये खुद ही स्ट्रॉन्ग है मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और इससे कम स्टेबल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको लेकर के जाने नहीं देगा। क्लियर है? मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको लेकर के जाने नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना। क्लियर है? अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर जाने नहीं देगा, इसको होल्ड करके रख लेगा। तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन तक ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। मगर अगर ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर यहाँ प्लस डिल जो जनरेट कर रहा है वो इससे ज्यादा स्टेबल है और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर प्लस डिल जो यहाँ जनरेट हो रहा है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इसका अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। क्लियर है? मतलब अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, इसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ विदड्रॉ कर लेगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब ज्यादा अनस्टेबल। अगर ये ज्यादा अनस्टेबल है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेगा। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विदड्रॉ किया, मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड H के साथ मतलब विदड्रॉ किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ जो H था वो क्या हो गया, अब इसके पास चला गया, ये कंप्लीट H इसके पास चला गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज की डेंसिटी जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझा? अब देखो हमने क्या बोला था, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा और किस टाइम हाइपर कंजुगेशन से आगे चल करके ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेगा, तो वो किस टाइम होगा। तो हमने बताया यहाँ पे देखो, ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, ये यहाँ से यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये कम स्टेबल है मतलब ये कम स्टेबल है तो मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मतलब ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ये ज्यादा अनस्टेबल है तो इसका फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होगा, ये जल्दी से विदड्रॉ कर लेगा। क्लियर है? तो ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विदड्रॉ कर पाएगा, मगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उससे विदड्रॉ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब कंप्लीट H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विदड्रॉ नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये बात समझा? तो मतलब जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर प्लस के बगल में अल्फा H है, अगर इस प्लस के बगल में अल्फा H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इस प्लस के बगल में अल्फा H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो चलता रहेगा, मगर जो कार्बोकैटायन बन रहा है अगर ये ज्यादा स्टेबल है, तो बताया ज्यादा स्टेबल है तभी रीअरेंजमेंट होगा। मतलब अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आने वाले प्लस चार्ज से ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तब ये क्या करता है, इसके H को भी विदड्रॉ कर लेता है, इसके H के क्लाउड को भी क्या करता है, अपने तरफ विदड्रॉ कर लेता है। क्लियर है? बात समझा? एक बार फिर से सुन लीजिए हमने क्या बताया आपको। सिंपल है, हमारे पास कार्बोकैटायन है, इसने इलेक्ट्रॉन को इसमें सिग्मा क्लाउड को विदड्रॉ करेगा, जब ये सिग्मा क्लाउड को विदड्रॉ करेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तो रीअरेंजमेंट जो है हमारा वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होता है। क्लियर है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन तीनों के बीच में
शेयर हो गया, डिस्पर्स हो गया, क्लियर है। बट ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन है, स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होने के बाद भी कंटिन्यूसली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे फोर्स लगाता रहेगा और उसको अपनी तरफ विड्रॉ करता रहेगा, क्लियर है। बट अगर ये कार्बोकैटायन इससे वीक है, अगर ये कार्बोकैटायन इससे वीक है मतलब इसका स्ट्रेंथ कम है, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और कैसे पता चलेगा ये कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा कम स्टेबल है, इसलिए हमने क्या बोला कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, क्लियर है। तो क्या बोला कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो अगर ये प्लस चार्ज उससे कम है, इसी प्लस चार्ज का स्ट्रेंथ उससे कम है, तो ये इसको अपने जगह होल्ड करके नहीं रख पाएगा और ये क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा, क्लियर है, समझा। तो H कहाँ चला जाएंगे, इसके पास चला जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो यही क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। तो इसको नोट करेंगे और पूरी कहानी अच्छे से लिख लेंगे, क्लियर है। Now, here we have some question. Now we need to solve this. Okay, rearrange the following कार्बोकैटायन। क्या करने हैं, आपको कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना है। तो पहली चीज तो आप ये चेक करेंगे क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा या नहीं। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज है तो हमको रीअरेंज कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर बनाना है, क्लियर है। तो चलो पहले वाले सवाल पे आ जाओ। तो पहले वाले सवाल पे देखो, तो रीअरेंज करने के लिए क्या बताया, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ही कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। सिर्फ कार्बोकैटायन का ही रीअरेंजमेंट हो सकता है और दूसरे किसी भी इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्लियर है। ये दो चीज क्लियर है। तीसरा चीज आप ध्यान रखें, रीअरेंजमेंट हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे ही होता है। अगर अगर एडजेसेंट कार्बन पे जाने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है तब ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, बात समझा। क्लियर है यहां तक। तो क्या बताया कि अगर कार्बोकैटायन एडजेसेंट रीअरेंज होने के बाद अगर कार्बोकैटायन एडजेसेंट कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के आऊं और स्टेबिलिटी बढ़े तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ से यहाँ लेकर के जाऊं और स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्लियर है। क्लियर है ये चीज। चलो तब देखते हैं इसका क्या क्या अरेंजमेंट होता है। तो फर्स्ट वाले सवाल में देखिए कहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं हम। तो देखो अगर मैं प्लस चार्ज को चेंज किया, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो मैं 4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर बना लिया। सेकेंड वाले पे मिथाइल अटैच है, मिथाइल लिख लिया और यहाँ पे प्लस ले आया और यहाँ पे H को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया, क्लियर है। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करो तो 3 and 3 6, 6 and 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कितने हैं, सिंगल हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहां से यहां पे आने के बाद स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्लियर है। तो ये रीअरेंज करेगा, क्लियर है ये वाला। तो क्या बताया, रीअरेंजमेंट के लिए एडजेसेंट कार्बन तक ही रीअरेंजमेंट हो सकता है, एडजेसेंट कार्बन तक नहीं, रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा रीअरेंजमेंट हो सकते हैं मगर रीअरेंजमेंट हमेशा किसके साथ होगा, एडजेसेंट कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे। मगर बगल वाले कार्बन पे जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तभी जाकर के रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्लियर है, अदरवाइज रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करने हैं, इसमें रीअरेंजमेंट कराने हैं, क्लियर है। तब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितने हैं, 3 and 2 कितने आ गए, 5 आ गए। अब इस कार्बोकैटायन को मैं रीअरेंज करा सकता हूँ। तो रीअरेंजमेंट क्या बोला है, एडजेसेंट कार्बन से होता है। तो एडजेसेंट कार्बन चेक करो, ये कार्बन एडजेसेंट पे है और ये कार्बन एडजेसेंट पे है, दोनों ही जगह जा सकता है।
अगर मैं इस वाले को यहाँ लेकर के आता हूँ, अगर मैं इस वाले को प्लस चार्ज को यहाँ लेकर के आया तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ कितने थे, 5 थे। तो क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या नहीं है। रीअरेंजमेंट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करें, हम दूसरे वाले में चेक करेंगे। दूसरे वाले में कहाँ जा रहा है ये, अगर मैं इसको यहाँ रखूं और प्लस चार्ज को यहाँ पे लेकर के आया, प्लस चार्ज अगर मैं यहाँ पे लेकर के आता हूं तो क्या है, यहाँ से यहाँ पे आया, हाइपर कंजुगेशन काउंट करो, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कितने हो गए, 3 है। कितने हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पे, 3 है। और यहाँ पे कितना था, 5 था। तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ आने के बाद भी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है, क्लियर है। लोगों को ये डाउट होता है सर इसके आगे ये रीअरेंज तो कर सकता है ना, इसके आगे चलेगा तो इसके पास 8 हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, वहां तक चल सकता है ना। बट मैंने क्या बोला था कि एडजेसेंट कार्बन पे चलने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी वो रीअरेंज करेगा, अदरवाइज वो रीअरेंज नहीं करेगा। क्लियर है। इसके आगे फर्दर, इसका फर्दर रीअरेंजमेंट हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, मगर रीअरेंजमेंट के लिए मोटिवेशनल फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी का इंक्रीज करना। यहां से यहां वो तभी आएगा जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर यहां से यहां आने के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रही है तो यहां से यहां कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस का तो इसको कुछ पता नहीं है ना। ये तो तुम हो यहाँ से देख ले रहे हो कि सर यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मगर जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था तब इसको थोड़ा ना पता था कि इसके और आगे जाएंगे तो और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, इससे तो नहीं पता है ना। तो ये यहां से यहां मूव करेगा तो तभी करेगा जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है, क्लियर है। तो हर एक स्टेप में रीअरेंजमेंट कब कराने, जब हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज करे। अगर स्टेबिलिटी हर एक स्टेप में इंक्रीज नहीं कर रही है तो हम लोग रीअरेंज नहीं कराएंगे। क्लियर है, बात समझा इस वाले में। तो ये यहाँ भी नहीं आ सकता और ये यहाँ भी नहीं आ सकता। क्लियर है। फर्दर स्टेप्स को काउंट पहले नहीं करते, हर एक स्टेप में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, समझा। तो क्या बोला इस वाले में, यहाँ पे चला स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे यहाँ भी आ रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इसके फर्दर चलने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मगर हमें किसको काउंट करना है कि हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। क्लियर है, समझा। तुम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मैं इसे एज्यूम करूँ कि ये हमारा क्लासरूम है और नॉन एसी क्लासरूम है, अभी समर का टाइम है और ये नॉन एसी क्लासरूम है और आप लोग काफी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्लास में। तो मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप ना सामने वाली क्लासरूम में चले जाओ, वहां पे एसी लगा है, तो आप जाएंगे, ऑब्वियसली आप लोग चले जाएंगे। क्लियर है। दूसरा मैं आपको देता हूं कि चलो सेकेंड वाले क्लासरूम में है, सामने वाले क्लासरूम में अभी भी एसी लगी है और एसी चल रही है, मगर वहां पे क्लास चल रही है। तो मैं आपसे बोलूं कि तुम ना गैलरी में खड़े हो जाओ, जब वो क्लासरूम खाली होगा तब तुम लोग उस क्लासरूम में चले जाना, फिर वहां क्लास कर लेना। क्लियर है। तो क्या तुम लोग जाओगे, जाने की टेंडेंसी क्या होगी, आपको पता नहीं कि वो क्लास कितने बजे तक चलेगी, क्या पता उस आप क्लास के बाद दूसरी क्लास हो, वो क्लास खाली ही ना हो, तो आपको क्या होगा, गैलरी में खड़े रहने पड़ेंगे। यहाँ तो एटलीस्ट तुम बैठे हो, नॉन एसी है मगर फैन है, तुम बैठे हो, कंफर्टेबल हो। अगर तुम बाहर गए तो क्या होगा, सभी लोग खड़े रहोगे, रहना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल है। तो क्या तुम जाओगे, क्या नहीं। जब तक आप एश्योर नहीं है कि नहीं वो क्लासरूम खाली होने ही वाला है तभी आप जाएंगे। और अगर हमें ये नहीं पता कि वो क्लासरूम खाली होगी या नहीं होगी, हो सकता है वो क्लासरूम शाम तक चलता रहे वहाँ पे क्लास, या हो सकती है उसके नेक्स्ट क्लास हो या कुछ और क्लास, कोई दूसरा क्लास अरेंज किया गया हो। तो इसका इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप जा सकते हैं क्या, वहाँ पे नहीं जा सकते। क्लियर है, क्लियर है, बात समझा। तो अगर हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है, चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो दो एडजेसेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के लिए क्या चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे रीअरेंजमेंट होगा। एडजेसेंट कार्बन एक ही है और एक ही है, दोनों जगह रीअरेंज करा करके देखूं तो मैं इस वाले पे रीअरेंज करा कर देखता हूं। तो यहाँ पे चला, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 2 हो गए। अभी कितने थे हाइपर कॉन्जुगेशन, 5 थे इसके पास, और अभी कितने हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 हो गए। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी क्या, नहीं। तो क्या ये यहाँ पे रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा। दूसरे वाले पे चलो, इस वाले पे चलो, इस वाले पे चलो। तो इस वाले पे चला मैं, तो यहाँ पे अगर मैं रीअरेंज कराता हूँ इस वाले को, तो अब की बार क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इस वाले से ज्यादा है, तो ये रीअरेंज करेगा और ये रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। क्लियर है, समझा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास एक ही एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला, तो बस यहीं पे रीअरेंज करा सकते हैं। तो मैं रीअरेंजमेंट करा के देखता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आ गए, 4। स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या किया, रीअरेंज किया। अब जब ये स्ट्रक्चर बना तो मैं देखता हूँ कि अगर इसको मैं फिर से रीअरेंज कराऊं तो स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर सकती है। तो मैं फिर से रीअरेंज कराया। अब फिर से रीअरेंज कराया तो क्या हो गया, अगर प्लस चार्ज यहाँ पे आया 3 3 एंड 2 कितने हो गए, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, पॉसिबल है, क्लियर है। मगर लास्ट वाले में क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये कैसा कंडीशन हो गया कि जैसे मैं बोलूं कि बस क्लास, वो क्लास छूट गई, सामने वाली क्लास जो इसी क्लासरूम में, वो क्लास छूट गई, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, अब तुम चले जाओ, अब जा सकते हो। तो अब आप गैलरी में जाके खड़े रहेंगे, वो बच्चे निकलेंगे, फिर आप इंटर कर जाएंगे, क्लियर है। मगर लास्ट वाला कंडीशन कैसा था, हमने कहा कि आप गैलरी में जाके खड़े हो जाओ, जब वो क्लासरूम खाली होगी तब आप चले जाइएगा। तो वो क्लासरूम कब खाली होगी, वो क्या है, अनसर्टेन है। तो उसके बारे में हमें पता नहीं, तो क्या होगा, आपको क्लासरूम मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके चांसेस 50-50 है, क्लियर है। तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये हमें पता नहीं, मगर करंटली आप बाहर खड़े हैं तो वो क्या करेगा, आपको अनस्टेबल करेगा, क्लियर है, बात समझा। यहाँ पे हर एक स्टेप में क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, समझा। चलो हटाओ ये वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्या ये रीअरेंज करेगा, अगर ये यहाँ पे है और अगर यहाँ पे चला तो यहाँ पे चला, तो यहाँ पे देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2 और 1 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। और अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट कराता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ लेके चला तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 5 हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर है। वहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 5 है। तो वहां पे भी रीअरेंज कर सकता है। और मैं दूसरे साइड रीअरेंज कराऊं, दूसरे साइड रीअरेंज कराऊं तो कहाँ चलेगा, यहाँ पे आया प्लस चार्ज और यहाँ पे पीएच है। अब बताइए कहाँ कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही साइड पे स्टेबिलिटी क्या इंक्रीज करी है। तो दोनों ही साइड पे ये रीअरेंज कर सकता है, मगर ये रीअरेंजमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे ज्यादा कौन सा होगा, ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, क्लियर है। तो अगर आपको चूज कर दिया जाए कौन ज्यादा करेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्लियर है। ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मगर ये ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्लियर है, समझा। तो आप हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर ही बनाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखे, आप यहाँ पे चलेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे चलेंगे तो रेजोनेंस, सेम चीज है। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन और बेंजीन का रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी क्या है, वहां से ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो ये कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, मगर यहाँ पे चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका प्रोडक्ट में क्या लिख लोगे, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे प्लस आ गया, क्लियर है। अब इस वाले का बताओ, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, चेक करके देखे। अगर मैं यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, ये 2 एडजस्टन है ना, यहाँ पे चला तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे चला 2 1 3 हो जाएंगे। तो क्या किसी कंडीशन में ये फिर से सेम वाला कंडीशन हो गया जो भी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो हमें पता है कि सर यहाँ से यहाँ आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मगर वो क्या है, वो एक स्टेप बाद की बात है। अभी इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई मोटिवेशनल फोर्स तो चाहिए ना, अरे इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई मोटिवेशनल फोर्स चाहिए। ये कैसा कंडीशन हो गया, वही वाली कंडीशन है कि मैं आपको बोलूं कि गैलरी में जाके खड़े रहो और सामने वाली क्लास जब खाली होगी तो आप चले जाएंगे। अब वो होगी या नहीं इसका कोई सर्टेन हो तो सर्टेन है नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मगर ये तो सर्टेन है कि तुम बाहर जाके खड़े होगे तो क्या होगी, स्टेबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज करेगी, क्लियर है। तो बाहर जाने की टेंडेंसी क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। तो तुमको तुम्हारे यहाँ से बाहर जाने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। उसी तरह इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ से इधर जाने से बढ़ सकती है, मगर यहाँ से यहाँ आने में कम हो रही है। तो क्या ये काम करेगा क्या जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो, बिल्कुल नहीं करेगा, क्लियर है। मॉलिक्यूल्स हर काम कब करता है, जब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ से यहाँ पे नहीं चलेगा, क्लियर है, समझा ये चीज, अरे समझा ये वाला, ओके, नोट करेंगे ये वाले। चलो ये 2 सवाल करके बताओ, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर के जाऊँ तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? अभी कितने हैं? अभी इसके पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन है। मैं इसको यहाँ पे लेकर के आता हूँ, एक ही एडजेसेंट कार्बन है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लेके आया तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो जाएंगे? 3, यहाँ पे 3 है। और लेट मी चेंज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेकर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए? 3 एंड 2 इधर हो गए और एक इधर हो गए। 3 एंड 4 to 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या ये फर्दर रीअरेंज कर सकता है क्या? अगर आप इसको यहाँ भी लेके आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम ही होगी। क्लियर है? तो इसके आगे ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लो एक। ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 भी करें। क्वेश्चन नंबर 10 भी करें। अब रीअरेंज कराने, ये क्लियर है? यहाँ पे रीअरेंजमेंट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, मगर फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इस वाले सवाल में देखो, क्या ये रीअरेंज करेगा? यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 2, टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 6 है। अगर मैं रीअरेंजमेंट करा दूं इसका, तो यहाँ पे प्लस आएगा, आएगा या नहीं? या यहाँ पे आएगा। अभी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 4 ही है। तो क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। जबकि ये कह सकते हैं कि सर मैं इसको यहाँ लेके आऊं तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है, मगर ये क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। क्या कंडीशन बताइए? नेक्स्ट स्टेप वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ से यहाँ चलो, फिर यहाँ से यहाँ चलोगे, तब जा करके उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ आने में कोई मोटिवेशनल फोर्स नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ रीअरेंज नहीं करेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ये वाला? चलो इस वाले में देखो। इस वाले में देखो क्या हो गया, यहां से यहां पे चला तो हमारे पास यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, आ सकता है। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करो, कितने हैं? 2, 4 और 3, यहाँ पे 7 हैं। ये रीअरेंज पॉसिबल है। क्या अब ये इधर या इधर रीअरेंज करेगा क्या? यहाँ पे लेके चलो 2 और 1, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता। यहाँ पे चेक करें, अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर के जाता हूँ तो देखो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लेके चला तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस मिल जाएगा, इसको स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी जब यहाँ पे आएगी। तो पहले स्टेप में यहाँ रीअरेंज करेगा, फिर यहाँ रीअरेंज। क्लियर है? ये बात समझा? तो बेसिक चीज क्या है इस वाले में कि रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा बार हो सकती है। एक ही कार्बोकैटायन एक से ज्यादा बार रीअरेंज कर सकता है, मगर हर एक स्टेप के लिए इंडिपेंडेंटली उसका स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। अगले स्टेप में इंक्रीज करेगा, ये अगले से अगले स्टेप में इंक्रीज करेगा, उससे कार्बोकैटायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ रहा है कि जिस स्टेप में वो रीअरेंज कर रहा है उस स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। क्लियर है? समझ गए यहां तक? नोट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिथाइल फिनाइल एंड अल्काइल से पढ़ेंगे। क्लियर है? आप इसको नोट कर लें।